جی ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان. اور اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آمنہ نورین جو کہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور آج کا اگر ہم بات کریں کہ جس ٹاپک پہ ہم نے توثیق ان سے بات کرنی ہے, یہ ایک وہ ٹاپک ہے جو آلموسٹ ہر گھر میں, یا ہم کہیں گے کہ ہر گھر میں نہیں, ہر ایک سے دوسرے گھر کا یہ بہت بیسک سا ایک مسئلہ ہے, لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے تھوڑا سا گھبراتے ہیں. تو آئیے ہم ان سے آج بات کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم آمنہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ آپ کا آنے کے لیے. تھینک یو فار ہیونگ می آن شو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ایک ایسا لفظ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے نا جی, اور وہ ہے ڈپریشن. تو آج لیکن آپ اس کا بڑا ایک ڈفرینٹ اینگل لے رہی ہیں کہ جو پیرنٹل ڈپریشن ہے وہ بچوں پہ کیا اثر ڈال رہا ہوتا ہے. سو اس کو ذرا تھوڑا سا انفولڈ کیجئے کہ یہ اتنا مشکل سی اصطلاح ہمارے اوپر سے گزر گئی. جی اچھا, بیسکلی اب جیسے ہم یوزولی بات کرتے ہیں کہ بچے ہوتے ہیں, گرون اپ ہوتے ہیں, تو ان میں ڈپریشن ہوتا ہے. بٹ جب ایک بچہ ایک ارلی سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے گزر رہا ہوتا ہے, یا جو اس کے ارلی سٹیجز فیزز آف ہوتے ہیں آفٹر برتھ یا ڈیلیوری کے بعد یا پریگنینسی کے بعد, اس کے بعد جو پیرنٹس ہیں ان کے اندر جو وہ ڈپریشن فیس کر رہے ہوتے ہیں بیکاز آف ملٹیپل ریزنس, کہ ایک جیسے ہم ٹرم سنتے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن, ٹھیک ہے, یا پوسٹ نیٹل ڈپریشن ہوتا ہے. تو سیم وے میں پیرنٹس جو وہ ڈپریشن فیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ایک رسپانسبلٹی, ایک رول چینج ان کے ساتھ جو ہے وہ لے کے چلنا, اور وہ ساری چیزیں پھر بچے کے اوپر کیونکہ بالکل آپ کا لائف اسٹائل بدل جاتا ہے آفٹر بیبی, اور آپ کا سلیپنگ پیٹرن بھی چینج ہو جاتا ہے. تو شاید ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف عادی کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے لفظ استعمال کیا پیرنٹس. پیرنٹس میں تو دونوں آ جاتے ہیں, لیکن پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی اگر ہم بات کریں تو عموماً بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ عورت جو ماں بنتی ہے اس کے ساتھ, تو کیا باپ بھی اس ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے؟ بالکل. ہمارے انفارچونیٹلی ایسا ہے کہ لوگ شاید ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہونے کی وجہ سے جو فادر ہوتے ہیں وہ اپنے ایموشنز کو اتنا شو نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم دنیا بھر میں دیکھیں تو ڈپریشن جو ہے وہ ایک لیڈنگ کاز ہے ڈسیبلٹی کا. اچھا, اور ورلڈ وائڈ اگر ہم دیکھیں تو 80% جو گلوبل برڈن آف ڈیزیز ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہے, اور 13% ایسی خواتین ہیں جو پیری نیٹل پیریڈ میں گلوبلی جو ہے وہ سفر کرتی ہیں. اور اگر ہم اس میں اسٹیٹسٹکس یعنی ماں بننے کے بعد, اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو فادر کا رول جو کہ اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا, بٹ 23 to 42% مین ایسے ہیں جو فادر ہوتے ہیں جو کہ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ڈپریشن ہوتا ہے؟ باپ تو بڑا خوش ہوتا ہے اس کو, اور ماں بھی خوش ہوتی ہے, پورا فیملی خوش ہوتا ہے کہ جی بچے کی ولادت ہوئی ہے. تو یہ کون سا ڈپریشن ہے جو اتنی خوشی کے بعد آپ جس کا شکار ہو جائے؟ بیسکلی جب ایک مدر ایک ڈپریشن کے فیز سے اگر گزر رہی ہو, ایک میٹرنل ڈپریشن ہوتا ہے, تو وہ سائملٹینیسلی اس کے ساتھ فادر بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایز اے پارٹنر کہ دونوں کی ایک رسپانسبلٹی چینج ہو رہی ہے, اور ان سارے فیز میں وہ ساتھ گزر ہوتا ہے. بٹ چونکہ وہ اس طریقے سے پورٹری نہیں ہوتا, وہ شو نہیں کرتے, تو لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی, اور وہ ایک ہڈن چیز ہے کہ اور اس کا جتنا امپیکٹ بچے کے اوپر پڑتا ہے لیٹر آن اس کی لائف پہ وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن یوزلی اتنا زیادہ سامنے نہیں آ رہا ہوتا بیکاز آف اسٹگما اور ان سارے فیکٹرز. اس کے سمپٹمز کیا ہیں اس طرح کا ڈپریشن اگر فیملی میں ہم دیکھیں کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد کچھ بیہیویئر, کچھ رویے بدل رہے ہیں ماں باپ کے, وہ کیا رویے بدلتے ہیں جس سے ساس سسر, ماں باپ, چچا تائی, پھپھو, ممانی اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ماں اب پوسٹ نیٹل ڈپریشن سے گزر رہی ہے اور باپ بھی اس سے افیکٹ ہو رہا ہے؟ وہ سمپٹمز کیا ہیں؟ دیکھیں بیسکلی جو ایک ارلی وارننگ سائن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں, یا جو ایک ڈپریشن کے سمپٹمز ہوتے ہیں کلینکل, کہ وہ یوزلی جو ہے وہ لوگوں میں تھوڑا سا وڈران رہتے ہیں, لوگوں سے زیادہ گھلتے ملتے نہیں ہیں, سوشل انٹریکشن اپنا کم کر دیتے ہیں, ذرا آئسولیٹڈ رہیں گے, تھوڑی سیڈنس کی فیلنگ ہوگی. ان ایکٹیویٹیز میں جن میں وہ یوزلی خود کو انڈلج محسوس کرتے ہیں ان سے ذرا تھوڑا دور ہو جاتے ہیں. ایک ہوپ لیسنس کی فیلنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں فیوچر کیسا ہوگا, اچھا ہوگا نہیں ہوگا. اچھا ریلی اتنے کوئی, یہ تو بچہ دنیا میں آیا ہے, یہ تو خوشی سے ایسے ڈھول چھول بجنے چاہیے, یہ تو عجیب سی کہانی لگ رہی ہے. مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ اب جس طرح آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہیں, اور ہمارے ارد گرد ہم نے بہت ساری فیمیلز بھی ایسی دیکھی ہیں
जो इस चीज़ से गुजर रही होती है, लेकिन कई घर वाले को पता लग जाता है और कई घर वाले ऐसे होते हैं जो देख के भी इस चीज़ के बारे में नहीं बोल रहे होते. बट नाउ द पॉइंट इज़ दिस कि हम किस तरीके से उन लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं. ये तो पता लग गया एक बंदा डिप्रेशन में, उसको हम ये नहीं कह सकते. आप ये देखें तो उसी का अगर बिल फर्ज मैं डिप्रेशन में हूँ, आप मुझे कहेंगे तो मैं इस चीज़ को डिनाई कर दूंगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ से डरते हैं ना, इस लेबल से डरते हैं कि ये हमें कह दिया जाए कि जी ये डिप्रेशन में है, क्योंकि फिर हमें अपने आप कमज़ोर और इस तरह. अब हम उनको हेल्प कैसे करें जो डिप्रेशन में है? अच्छा, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूजुअली जो स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ के साथ जो लिंक्ड है कि यूजुअली लोग ओपन अप नहीं होते, उसके बारे में बात नहीं करते. तो उस स्टिग्मा को ब्रेक करने के लिए जो है एक जो है लाइक बहुत सारे वेज हो सकते हैं जिसमें हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम उसके लिए डिफरेंट एजुकेशन उसमें कैंप किए जा सकते हैं, डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप्स कराई जाती सकती हैं. उसके अलावा कुछ कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच भी की जा सकती है कि फॉर एग्जांपल ऐसे लोगों को जो है वो आप डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाके या डिफरेंट सेमिनार्स आपने अवेयरनेस कैंप किए, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम जो उनके साथ पार्टनरशिप करके उसको अगर आप मेंटल हेल्थ एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम बना ले ट्रेनिंग, तो वहाँ से लोगों में एक बहुत अवेयरनेस आ सकती है. और उसके बारे में जितना ओपनली बातचीत होगी, लाइक आज जैसे हम कि अगर मीडिया में उसकी रिप्रेजेंटेशन हो कि आप उस स्टिग्मा को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे बात करें और लोग ये समझे कि ये आप उसके बारे में ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, उसके साइंस के बारे में बात करें, तो लोग ज़रा ओपन अप होंगे. दूसरा, मैंने कुछ जैसे रिसेंटली भी शोबिस में कुछ सेलिब्रिटीज़ है जिन्होंने उसके बारे में, या जैसे हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में उन्होंने उस बारे में बात की कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं. तो वो जो आप एक लीडिंग एग्जाम्पल सेट करते हैं कि इट्स कॉमन, हर किसी को हो सकता है. और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे आपकी नजर कमजोर हो गई है या आपका पांव फ्रैक्चर हो गया और आप बैसाखी पे आ गए हैं, तो आप आप अपनी उस चीज को, ब्रेन जो है वो भी एक ऑर्गन है, जैसे हमारे जिस्म के दूसरे हिस्से हैं, बिल्कुल इसी तरह से ज़हन भी है. तो अगर नजर कमजोर हो गई या जुकाम लग गया या कान में दर्द है और सुनाई कम दे रहा है, तो आप उसके डॉक्टर के पास जाते हैं. बिल्कुल इसी तरह आंख, नाक, कान, पाँव, उंगलियां, सर के बाल, स्किन, जो भी आपको मसला है, दिल का मसला है तो दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, गुर्दे का मसला है तो आप कहेंगे अच्छा भाई मुझे गुर्दों का मसला है, मैं गुर्दे के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ. बिल्कुल इसी तरह से अगर जहन का मसला है, ब्रेन का मसला है, तो आप जहन के डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे. तो इसमें हमने भी उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना कि अरे ये तो पागल हो गया है, पागलों के डॉक्टर को लेके जा रहे हैं चाचा मुबशर नू. अब चाचा मुबशर पागल था नहीं, वो इस बात को सुन के वैसे ही पागल हो जाएगा कि यार लोगों में ना वो अवेयरनेस नहीं है. वो समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमने इस बारे में बात की तो लोग कि इसको अच्छा ये पागल है, ये एक स्टिल अभी तक बहुत एजुकेटेड फैमिलीज में वो कॉन्सेप्ट अभी तक लोग नहीं जाते. आप अगर साइकेट्री की ओपीडी में देखें तो बहुत सारे लोग एक क्विक फिक्स चाह रहे होते हैं कि अगर आए हैं, आप फेथ हीलर्स के पास चले गए, आप डिफरेंट लोगों के पास, अब आप साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से चाह रहे कि आप आए हैं तो वो आपको फौरन ठीक कर दे, आपको मेडिसिन दे दे, आपको वो तो फौरन दोबारा ना आना पड़े, बस ये एक दफा हम आए, किसी को पता न लग जाए कि हम एग्जैक्टली. और फैमिलीज में उसको हाइड करते हैं, नहीं बताएंगे उसको, और कि एक और फिर उसके बाद लेटर ऑन लाइफ में बहुत कि वो और माँ बाप भी सेल्फ डिनाइल में चले जाते हैं कि हमारा बच्चा जो है अगर उसको कोई नफसियाती मसला है, नहीं साडा पुत्र तेहजा नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी तरबियत पे सवाल उठ रहा होता है ना कि शायद हमारी तरबियत अच्छी. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो फातिमा ने सवाल किया था, मैं उसी को जरा आपके सामने एक और अंदाज में रखना चाहूँगा. ये तो हो गया अवेयरनेस अबाउट साइकियाट्रिक इश्यूज, लेकिन अगर बच्चे की पैदाइश के बाद माँ बाप किसी तरह के डिप्रेशन या जो आपने सिम्टम्स बताया उससे गुजर रहे हैं, तो अब घर में हमने करना क्या है? वो डॉक्टर के पास तो जाएं, लेकिन घर में ऐसा क्या माहौल हो, कुछ ऐसी हमें टिप्स दीजिए जो हमारे आम नाजरीन इस वक्त जो राइजिंग पाकिस्तान देख रहे हैं वो उनको अप्लाई कर सके. अच्छा, उसमें देखिए कुछ चीज़ें ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब यूजुअली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कोई इशू हो तो लोग हेल्थ केयर सेंटर आए, तो कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच में ये होता है कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर घर पे जाके विजिट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मदर है वो कोई, तो वहाँ पे जाके उनसे डिस्कशन करना. दूसरा ये कि फैमिली का अगर एक पार्टिसिपेटरी रोल हो, पार्टिसिपेटरी रोल से मुराद ये है कि आप सिर्फ मदर को एड्रेस मत करें, आप सिर्फ फादर को नहीं, उस पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनको अवेयरनेस दें कि ये एक प्रॉब्लम है और इससे निकला जा सकता है और किस तरीके से मदर इस फेज के बाद ये सिम्टम्स फेस कर रही है. तो जब घर के ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, ये सब इन्वॉल्व होंगे तो उनको उस प्रॉब्लम की समझ आती है कि अच्छा हमने उनके साथ डील कैसे करना है या किस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि उस चीज़ का इम्पैक्ट सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर नहीं आ रहा,
बच्चे के लेटर ऑन लाइफ में भी इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी सोशल, उसकी कॉग्निशन, उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, एक पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट डेवलप होती है वो नहीं हो पाएगी। अच्छा, हालांकि वो एक नौज़ायदा बच्चा है, छोटा सा, लेकिन अगर वो लेकिन उसके वो बाद सब बड़ा होता चीजें है लेटर ऑन, उस पे और इफेक्ट कर रही अगर होती है। घर में देखें ना उस छोटे बच्चे के कोई बड़े बहन भाई भी हैं तो वो बच्चे तो अफेक्ट हो रहे होंगे पेरेंट्स के बिहेवियर और इन चीज़ों और से। बच्चे का जो ये पहले 3 साल होते हैं लाइफ के, ये बहुत क्रूशल होते हैं, इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती है, तो जितनी ज़्यादा उसे प्रॉपर अटेंशन मिलेगी पहले 3 साल में, उतना बच्चे की ग्रोथ और वो बड़े होके उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और अच्छा वो बनता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग ईयर्स में बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है कि पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट नहीं हो रही, एक सिक्योर बेस उनको नहीं मिल रही, तो वो लेटर ऑन डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, जैसे हम अडल्टहुड में बच्चों को देखते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की तरफ जाते हैं, तो वो बेसिकली अगर चाइल्डहुड में आपको उतनी प्रॉपर केयर ना मिले तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है जहां पेरेंट्स की प्रॉपर बच्चे को अटेंशन चाहिए। तो क्या फिर इन बच्चों को जिन्होंने बचपन में ये चीज़ें फेस की होती हैं या जिनके पेरेंट्स डिप्रेशन में होते हैं, क्या बड़े होके उनमें डिप्रेशन में जाने के चांसेस हैं? बिल्कुल, दैट्स अ गुड क्वेश्चन कि जिन बच्चों में या जिनके बचपन में सफ़र करते हैं, इस बात के हाई चांसेस हैं कि वो लेटर ऑन डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरजनरेशनल ट्रांसमिशन होती है कि अगर फॉर एग्जांपल फैमिली हिस्ट्री है, आपका रिस्क फैक्टर है, आप वल्नरेबल है, तो वो फैमिली हिस्ट्री में भी आगे पास ऑन होता है। अच्छा, अब बच्चे की पैदाइश के बाद जो मेजर चेंज घर में आता है वो जगराते होते हैं, है ना जी? क्योंकि बच्चा रात को रो रहा है, उसको दूध चाहिए या उसको फीड कराना है मदर को, या उसका वो गीला हो गया है और वो वो एक घर में एक एक्टिविटी रात को भी चल रही होती है, जिसकी वजह से भी मेरा ख्याल है कि माँ और बाप दोनों वो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती, बाप ने सुबह दफ्तर जाने। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए एक कानून भी मौजूद है कि बच्चे की पैदाइश के साथ उनको जो मैटरनिटी लीव जो है वो मिले, और इवन बाप के बारे में भी अब इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी ये बहुत अहम है कि बाप को भी छुट्टी मिले दफ्तर से, ताकि वो इस नई पूरा आपका जो एक लाइफस्टाइल बदल गया है उसके साथ वो एक्लेमेटाइज कर सके, और वो चिड़चिड़ापन और रात को जागना वो बच्चे के स्लीप साइकिल से अपने आप को एक्लेमेटाइज करे। तो इसमें बाप ये सिर्फ माँ का मतलब नहीं कि बच्चा पैदा हो गया वो माँ ने पालना और मैंने तो दफ्तर जाना है, बाप की इन्वॉल्वमेंट भी बड़ी जरूरी है, और उसके मसाइल को भी हमने अप्रिशिएट करना है कि यार वो भी बेचारा रात को जागता है। क्योंकि अब तो डॉक्टर साहब आप भी देखती होंगी, फातिमा खुद इज अ मदर ऑफ 2 माशाल्लाह ब्यूटीफुल बॉयज, तो इनको मैं देखता हूँ कि इनके हस्बैंड जो जुहेब हैं वो इनका जो सेकंड बेबी हुआ तो उसके बाद मैं सुनता था कि वो भी रातों को जाग रहा है, वो भी बच्चे को चेंज कर रहा है, और उसको उसका कोई दर्द हो रही है, कोई रो रहा है, कोई उठाना है। तो जो लड़के हैं वो भी मैं देखता हूँ कि बड़ा अच्छी बात है कि वो बीवियों के साथ मिल के बच्चों को पाल रहे हैं। आपका इस बारे में क्या एक्सपीरियंस है? आप तो रोज मिलती हैं ऐसे पेरेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज एक्चुअली, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ सपोर्ट कि पेरेंट्स के लिए या मदर के लिए बहुत सपोर्ट है कि अब वो जो एक पॉजिटिव चेंज फादर में या उनमें आ रहा है कि वो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि सात चीज़ों में हेल्प आउट करना, कि अगर वर्किंग वुमेन है तो उनको हेल्प आउट करना, एंड दैट्स अ वेरी इंकरेजिंग थिंग। और ये आई थिंक उनकी वो जो एक जो शेयरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी वजह से उस चीज़ को काफ़ी हद तक उनके बर्डन को कम कर सकता है। बिल्कुल, और मुझे लगता है जब बर्डन कम होता है तो ये जो डिप्रेशन और इसकी ये चीज़ें, ये सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ नेचुरल। जब आप किसी को बर्थ इस तरह देते हो तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके बाद जब आप वैसे फिजिकली भी आप वीक हुए होते हो और फिर आपको पता लग जाए कि आपके पास कोई हेल्प भी नहीं है, फैमिली की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं आ रही, सपोर्ट नहीं है, तो आप वैसे ही अपसेट हो जाते हो। और ये सोशल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है। फैमिली की तरफ से हो, आपके फ्रेंड्स की तरफ से हो, आपके कोलीग्स की तरफ से, ओवरऑल आप जहाँ भी अगर आपको एक सपोर्ट मिल रही है तो वो आपको रिकवर होने में बहुत हेल्प करती है किसी भी उसमें। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और डॉक्टर आमना नौरीन ने आज बहुत एक अहम मौजू पे बात की है, और वो ये है कि बच्चे की पैदाइश बुनियादी तौर पे तो एक बहुत खुशी का मौका है, और अल्लाह ताला इस नेमत से हर एक को नवाजे, चाहे बेटा है चाहे बेटी है। लेकिन उसके बाद माँ बाप दोनों एक ख़ास किस्म के चिड़चिड़ेपन, उदासी, डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, जिस पे बात बहुत कम होती है, और इसको आइडेंटिफाई करना और पूरी फैमिली को एक सोशल सपोर्ट ग्रुप बन के उनको हेल्प करना कि तुम्हारी नई जिंदगी का एक चैप्टर शुरू हो रहा है और हम तुम्हारे साथ हैं, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फातिमा ब्रेक ले? बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है हाजिर होते हैं मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के मैसेजेस के साथ।